चलो check the answers for homework quick. There were only 3 entries. You know 4 feature का था. First one equity share capital debit 3 lakhs. To share 4 feature 1 lakh 80 to call in arrear 1 lakh 20,000. मिला? आया? Equity share capital debit second one. Equity share capital debit 1 lakh 60,000. To share 4 feature 1 lakh 20,000. To call in arrear 40,000. मिला? Third one equity share capital debit 5 lakhs. Share premium 1 lakh. To call in arrear 5 lakh. To share 4 feature 1 lakh. 5-1-5-1. आया? Premium once received should not be debited. Not received should be debited. Not received था के लिए डेबिट करना पड़ा 1 lakh rupees. Is that clear? Yes, sir. Now, all of you look at sum number 17. 17th sum, mark a star. 1717. Look at 17th sum. ध्यान से पढ़ना. Read. रंगून वाला कंपनी. Silence please. Rangoon Wala company issued 1,000 shares of 100 each, payable as follows: 30 on application, 50 on allotment, 20 on first and final call. Is there any premium? There is no premium. ध्यान से सुनना. 30 on application, 50 on allotment, 20 on first and final call. It forfeited 100 shares of 100 each at allotment time. It forfeited 100 shares of 100 each at allotment time. Allotment time मतलब कब कैंसिल हो रहा है? After allotment. Did you get it? After allotment you are cancelling. Allotment time. मतलब 80 rupees called up. 80 paid up, 80 called up जो बोलो. 80 paid up 80 called up पे कैंसिल हो रहा है. You get it? After allotment. अब कॉमन सेंस की चीज है. अगर आफ्टर अलॉटमेंट कैंसिल कर रहा है तो कुछ तो कारण होगा ना कैंसिल करने का. क्यों करते हो कैंसिल? कुछ नहीं भरा. क्या नहीं भरा होगा? अलॉटमेंट. एप्लीकेशन तो सबने भरा है. So that brings us to the conclusion that he has paid application, he has not paid allotment. Correct? Yes or no? Allotment time on which first and final call of 20 per share was not yet called up. तो ये तो बाकी ही है. हमें पता चल गया allotment time मतलब 80 called up पे उड़ा रहे हो. Give the necessary journal entries relating to उधर लिखो forfeiture and reissue of shares in each of the following alternative cases. Forfeiture and reissue. Question में लिख दो forfeiture and reissue of shares in each of the following alternative cases. मिला? Yes, sir. All 3 cases are independent of each other. पहले केस में क्या दिया है? 40 of these shares were reissued as 80 paid up for 90 per share. फिर 40 of these shares are reissued as 80 paid up, 80 called up at 80 per share. And 40 of these shares are reissued as 80 paid up at 70 per share. So all the 3 cases you have to do what? Forfeiture, reissue and transfer. Forfeiture, reissue and transfer. So let's start. Forfeiture. बोर्ड पे देखना. Forfeiture entry would be same. Forfeiture entry would be same. वो एक ही बार करें. ध्यान से देखना गाइस. पार्थ एकदम चुप. Forfeiture entry का फॉर्मेट याद है आपको? What is the entry for forfeiture? Equity share capital account debit. Capital cancel करना है. There is no premium in the sum. Is there any premium? No. To what? Call in arrear. To what? Share forfeiture. बराबर है? Am I right?
equity share capital debit to call in arrear to share forfeiture. Correct? Okay, now tell me how many shares are we cancelling? कितने shares हम लोग cancel कर रहे हैं? Cancel ऊपर दिया है forfeiture 100 shares दिख रहा है? It forfeited 100 shares of 100 each allotment time. दिखा? Second line. So 100 shares cancel कर रहे हैं. Capital को किससे multiply करो? 80 की 100. 80 क्यों? Allotment time. In between. बराबर है? Cancellation is in between. So 100 into 80 is how much? 8,000. 80 rupees पे ही उड़ा दिया, एंड में नहीं उड़ाया, बीच में ही उड़ा दिया. You can cancel in between. Last class we saw that. Out of this 80, what is call in arrears जो नहीं भरा, and what is forfeiture जो भरा और हमने हड़प लिया. तो what is call in arrear? 100 into 50. 50 रुपया उसने नहीं भरा, और forfeiture में 100 into 30. 3,000 उसने भरा था, वो हमने हड़प लिया. ये हुआ forfeiture. Is that right? समझ आया? forfeiture 80 रुपए पे उड़ा दिया, तो कैपिटल जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट. 80 से नलिफाइड, कॉल इन अर्लियर नलिफाइड, भरा हुआ पैसा हड़प लिया. Then we go for reissue. But पढ़ो केस 1. If 40 of these shares were reissued and 80 paid up for 90 per share. What do you mean by 80 paid up, 80 called up? याद है मैंने बताया. 80 paid up, 80 called up indicates the stage. तो ये स्टेज पे आप reissue कर रहे हो कि एंड में कर रहे हो? ये स्टेज पे कर रहे हो. आफ्टर अलॉटमेंट यू आर डूइंग. बट हाउ मेनी शेयर्स आर यू reissue? कैंसिल कितना किया था, बट reissue कितना कर रहे हो? 40. रिमेंबर दैट. इस स्टेज पे कर रहे हो 80 called up. एट व्हाट प्राइस? 80 का शेयर 90 पे करो. मतलब नया बकरा बीच में ही ओपन हो रहा है, उसको 80 का शेयर कितने में ऑफर किया जा रहा है? 90 में. तो 10 रुपया क्या हुआ? प्रीमियम हुआ. तो एंट्री क्या बनेगा रीइश्यू का? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. लॉस तो नहीं हुआ, प्रीमियम है, तो टू शेयर प्रीमियम अकाउंट. समझा प्रीमियम कहां से आया? इट इज 80 कॉल्ड अप एट 90 पर शेयर. 80 का 90 में ऑफर किया जा रहा है. कर सकता है ऐसे कंपनी रीइश्यू? हाँ, बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग है कंपनी का, तो इन्वेस्टर मर रहा होगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो 80 का 90 में आ गया, तो प्रीमियम पे इश्यू किया. लेकिन कितने शेयर्स रीइश्यू किए? 40. तो बैंक में कितना आएगा? आई थिंक 40 into 90, that is 3,600. कैपिटल में कितना आएगा? 40 into 80. The stage is 80 and premium is 40 into 10, 400. Is that clear? Now, whenever you reissue, there is an extra entry you need to pass. What is that? Transfer entry. What is that? Share forfeiture to capital reserve. Now, ध्यान से बोर्ड पे देखना, सोच के बताना. कैन आई ट्रांसफर फुल 3,000 का प्रॉफिट? क्योंकि लॉस तो 0 है, तो 3,000 minus 0. कैन आई ट्रांसफर फुल 3,000 फ्रॉम शेयर forfeiture to capital reserve? I can't do this. Why? 60 शेयर्स रीइश्यू करना बाकी है, तो 60 शेयर्स जब रीइश्यू करोगे तो लॉस हो सकता है उस पे. वो लॉस झेलने के लिए कौन सा अकाउंट चाहिए? शेयर forfeiture. तो आई कांट ट्रांसफर full 3,000. So what I mean to say is, can I compare 100 shares का profit with 40 shares का loss? No. 100 शेयर का प्रॉफिट हो रहा है और इधर रीइश्यू कितना हुआ है? 40 शेयर्स. तो आई कांट कंपेयर 100 शेयर्स का प्रॉफिट विद 40 शेयर्स का लॉस. हड़पा हुआ कितना है? 100 शेयर्स का प्रॉफिट है, और रीइश्यू कितना किया? 40. तो ट्रांसफर तो करना है, लेकिन कितना? 40 शेयर्स का प्रॉफिट माइनस 40 शेयर्स का लॉस. आई कांट ट्रांसफर फुल 3,000. Why can't I transfer full 3,000? क्योंकि बचा हुआ 60 शेयर्स भी तो रीइश्यू करोगे, उसमें लॉस होगा तो वापस शेयर forfeiture लगेगा ना. तो अगर पूरा ट्रांसफर कर दोगे तो बचेगा ही नहीं कुछ शेयर forfeiture में. समझा? मतलब
100 शेयर्स कैंसिल किया तो प्रॉफिट, ये हड़पा हुआ पैसा 100 शेयर्स का है 3000, बट लॉस जो भी है इधर तो नहीं है, लॉस होता तो 40 शेयर्स का होता। तो कैन आई कंपेयर 100 का प्रॉफिट विद 40 का लॉस? नो। तो इन ऑर्डर टू कंपेयर आई हैव टू फाइंड आउट 40 शेयर्स का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? तो वो कैसे करने का? एक छोटा सा नोट बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर 100 शेयर्स का प्रॉफिट 3000 है तो 40 शेयर्स का प्रॉफिट कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1200 हुआ। तो 1200 का प्रॉफिट माइनस, इज देयर एनी लॉस है कि नहीं? नहीं है। तो हाउ मच शुड आई ट्रांसफर? 1200। क्यों मैंने बैलेंस 1800 ट्रांसफर नहीं किया? उधर ऐसे ही रखा है 1800। वो 1800 क्यों रखा है? फोर फ्यूचर में, फ्यूचर में जब 60 शेयर्स रीइश्यू करेंगे तो उसका लॉस होगा ना, वो अब्सॉर्ब करने के। तो बोलने का मतलब अगर हम सारे शेयर्स रीइश्यू ना करें तो सारा प्रॉफिट भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं 100 का 100 शेयर्स रीइश्यू कर देता तो I could have done 3000 for share forfeiture to capital. Did I reissue all 100 shares? No. How many? तो 40 का ही प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। फ्यूचर में और 60 शेयर्स जब रीइश्यू करोगे तब ये 1800 ट्रांसफर होगा, माइनस लॉस व्हाटएवर इट इज। इज इट क्लियर? यस। इसको बोलते हैं पार्ट रीइश्यू। क्या बोलते हैं? पार्ट रीइश्यू। फुल रीइश्यू नहीं किया। कितना किया? पार्ट। तो जब आप पार्ट रीइश्यू करते हो तो ट्रांसफर भी कितना करना है? पार्ट। पूरा मत करो। लॉजिकल है, क्योंकि पूरा करोगे तो आगे लॉस अब्सॉर्ब करने के लिए फोर फीचर बचेगा ही, जो बचना जरूरी है। अब सेकंड केस पढ़ो, उसमें भी पहले फोर फीचर करनी है, बट विल देयर बी एनी चेंज इन फोर फीचर एंट्री? खाली रीइश्यू अलग है, तो फोर फीचर एंट्री विल बी सेम। ऐसे ही लिख दो, सेम है ऊपर वाली। फोर फीचर एंट्री सेम ही है। एग्जाम में से सेम मत लिखना, आया तो पूरा लिखना। सेकेंड केस पढ़ो, रीड सेकेंड केस। If 40 of these shares were reissued as 80 called up at 80 per share, वापस it is 80 called up। 80 called up मतलब इस स्टेज पे हो रहा है। And what is the reissue price? 80। 80 का 80 में गया, तो is there any profit loss? So what will be the reissue entry? Bank to equity share capital. But again, how many shares did I issue? 40. So 40 into 80 आएगा. Am I right? Hello? 40 into 80, this is reissue. 40 into 80, this is reissue. No profit, no loss. And whenever you reissue, you need to do this entry for what? Transfer. Again. Can I compare 100 shares का profit with 40 shares का loss? No. In order to make it at level, I have to compare 40 shares का profit with 40 shares का loss. So how much is 40 shares का profit? 1200. Minus, is there any loss on 40 shares? No. So how much will I transfer share forfeiture to capital reserve? Any guess? 1200. 1200 ही ट्रांसफर करूंगा। इधर भी 1200, इधर भी 1200, दोनों केस में क्यों 1200 हुआ? 40 shares. What if 45 would have reissued 60 shares? तो 1800 ट्रांसफर करता। What if I would have reissued 70 shares? तो 2100 ट्रांसफर करता। What if I would have reissued all the shares? तो full 3000 I would have transferred. Understood? जितना शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो उतना ही ट्रांसफर करना है, पूरा मत कर दो। तीसरा केस पढ़ो, क्या हो रहा है? व्हाट इज केस 3? विल यू चेंज योर फोर फीचर एंट्री? फोर फीचर एंट्री विल रिमेन द सेम, एम आई राइट? बट रीइश्यू एंट्री, फोर फीचर एंट्री विल रिमेन द सेम। तो मैं दिया नहीं ना फिर। बट रीइश्यू एंट्री, ध्यान से देखो, फोर फीचर एंट्री विल रिमेन द सेम, बट रीइश्यू के बारे में पढ़ो, क्या दिया है? इफ 40 ऑफ these shares were reissued as 80 paid up for 70 per share, 80 paid up for
70 per share, मतलब 80 पेड अप, मतलब ये स्टेज है एट 70 पर शेयर। तो 80 कॉल्ड अप 80 पेड अप मतलब ये स्टेज है, बट नए वाले बकरे को कितने में ऑफर किया जा रहा है? 70 में। इज दैट अ गेन और अ लॉस? तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर डेबिट टू व्हाट? अच्छा बताइए, बैंक कितना लिखूं? 40 इंटू 70, 2800। लॉस कितने का हुआ? 40 इंटू 10, 400, और इधर 40 इंटू 80, दैट इज 3200। ये रीइश्यू किया मैंने, am I right? And then there is transfer. Then there is transfer entry. Now एकदम ध्यान से देख के बताना, can I compare 100 शेयर का प्रॉफिट with 40 शेयर्स का लॉस? I have to compare 40 का प्रॉफिट with 40 का लॉस. What is 40 का प्रॉफिट? Minus 40 का लॉस. So how much should I transfer share forfeiture to capital reserve? बताओ. 800. How 800? समझा? 1200 माइनस 400. सर पहला और दूसरा केस में क्यों 1200 किया? क्योंकि लॉस था ही. There was no loss on reissue, but here you had loss on reissue. Did you get it? What if the loss on reissue was 800? तो 400 ट्रांसफर होता. What if the loss on reissue was 1000? 200 ट्रांसफर होता. What if the loss on reissue is 1100? तो 100 ट्रांसफर. Is it clear? बट बोलने इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुआ. सारे हो जाते तो क्रेडिट माइनस डेबिट. हम तक करते क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट क्यों करते थे? क्योंकि ऑल द शेयर्स रीइश्यू, तो सारा प्रॉफिट खत्म. एस शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व पूरा ट्रांसफर. यहाँ पे पूरा रीइश्यू हुआ है कि नहीं? सारा का सारा शेयर हमने रीइश्यू नहीं किया, पार्ट रीइश्यू बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पार्ट. तो जितना पार्ट आपने रीइश्यू किया है उतना ही शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर होगा. समझा कि नहीं? बोलो. गाड़ी तो नो. नेक्स्ट वन. लुक एट सम नंबर 30. 3030. ओके, 30th सम. देखो ध्यान से, सम नंबर 30 मेरा सम नंबर 30. ध्यान से पढ़ो. द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ पराग लिमिटेड is 30,000 equity shares of 100 each. मिला? The subscribed capital of Parag Limited is 30,000 equity shares of 100 each and 50,000 preference shares of 100 each. ये सब्सक्राइब है. व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्राइब? पब्लिक ने उतना खरीदा. ओके, सब्सक्राइब कैपिटल. ऑन बोथ ऑफ दीज शेयर्स 80 पर शेयर वाज कॉल्ड अप. ये पहला हिंट है. दोनों शेयर्स पे कितना कॉल्ड अप है? 80. तो जो कार्यक्रम होने वाला है वो कहां होने वाला है? 80 कॉल्ड अप, 80 पेड अप. बराबर है. अभी पढ़ो. द डायरेक्टर्स forfeited 500 equity shares held by Mr. Ashish, who failed to pay first and second call of 20 per share. They also forfeited 500 preference shares held by Ashok. Preference बाद में देखते हैं, पहले equity देखते हैं. Okay, equity share. Can I say equity share 100 रुपए का था, प्रेफरेंस भी 100 का था, इक्विटी भी 100 का था. दोनों 80 कॉल्ड अप थे. व्हाट डू यू मीन बाय 80 कॉल्ड अप? ये बाकी है, फाइनल कॉल बाकी है कि नहीं है? बाकी है. तो जो कार्यक्रम हो रहा है यहां हो रहा है, 80 के स्टेज पे हो रहा है. अब 80 रुपीस के स्टेज पे एक शेयर होल्डर को काटा जा रहा है, उड़ाया जा रहा है. 80 रुपीस के स्टेज पे उड़ा रहे हैं हम लोग. तो क्यों उड़ा रहे हैं 80 के स्टेज पे? तो नहीं भरा होगा. तो क्या नहीं भरा है उसने? पढ़ो. The directors forfeited 500 shares held by Ashish, who failed to pay first and second call of
20 per share, first call and second call of 20 per share. इसका मतलब ये दो चीज उसने नहीं भरा. हेलो, ये दो चीज उसने नहीं भरा, इसके लिए इधर काटा, तो ये क्या होगा? ये थर्ड कॉल होगा. बात गई दिमाग में? 1 सेकेंड. 80 कॉल्ड अप है. हेलो, 80 कॉल्ड अप है, मतलब 20 रुपया मंगवाना बाकी है. 80 वाले स्टेज पे ही उड़ाया एक शेयर होल्डर को, अपने फोरफीट किया. तो 80 वाले स्टेज पे काय को फोरफीट किया? 80 के अंदर उसने कुछ नहीं भरा है. कुछ तो नहीं भरा है. तो क्या नहीं भरा है? फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल नहीं भरा है. तो फर्स्ट कॉल कितने का है? 20. और सेकेंड कॉल कितने का है? 20. तो ये कितना? ये थर्ड कॉल हो गया आपका. बराबर है. मतलब 80 के अंदर 20 नहीं भरा, तो भरा कितना है? 40. ये क्या होगा? एप्लीकेशन एंड, अभी ये कुछ भी होने दो, 10, 30, 15, 25, व्हाटएवर, 40 तो भरा है ना. 80 के अंदर 40 भरा है, 40 नहीं भरा. ये समझ आया? इसके लिए इधर उड़ाया. आगे बढ़ो, प्रेफरेंस का बाद में देखते हैं. The directors reissued these forfeited shares of Ashish at 60 per share, 80 paid up, and that of Ashok at 72 per share, 80 paid up. All the reissued shares were taken up by Anaga. तो क्या करना है आपको? forfeiture, reissue and transfer. वापस वही 3 एंट्रीज करनी है. forfeiture, reissue and transfer. पहले इक्विटी का करते हैं, फिर प्रेफरेंस का करते हैं. इक्विटी का अलग, प्रेफरेंस का अलग. इक्विटी में ध्यान दो. इक्विटी किसके पास थी? आई थिंक आशीष के पास था. हेलो, मिला? इक्विटी शेयर्स आशीष के पास था. कितना शेयर्स था? इक्विटी शेयर्स ऑफ आशीष. देखते हैं. हाउ मेनी शेयर्स डिड आशीष हैव? हाउ मेनी शेयर्स डिड आशीष हैव? 500 shares. We are cancelling 500 shares. Think and tell me how much you will multiply your capital by. 500 into what? 80 or 100? 80, because this stage after second call, 80 called up पे उड़ा रहे हो. Fully called up पे उड़ा रहे हो तो 100. 80 called up पे तो 500 into 80, 40,000. Call in arrear. What is call in arrear? जो पैसा उसने नहीं भरा. ध्यान से पढ़ के बताओ क्या नहीं भरा. 20 फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं भरा, ये नहीं भरा है. तो कितना होगा कॉल इन अरियर? 500 into 40, that is 20,000. and what is forfeiture? जो भरा है, क्या भरा है बंदे ने? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट. ये समझ आया? 80 गोल्ड ऑफ सीट पे उड़ा रहे हो. 40 भरा, 40 नहीं भरा. 20,000 आया, 20,000 नहीं आया. ये नलिफाइड, ये हड़पा. अब रीइश्यू कर रहे हो. देख के बताओ पीछे कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं. द डायरेक्टर्स रीइश्यूड द forfeited shares of Ashish at 60 per share, 80 paid up. मिला? Are we reissuing only part shares or all the shares? All the shares. 500 के 500 रीइश्यू हो रहे हैं. 60 at 80 paid up. 80 paid up मतलब क्या, कहाँ हो रहा है रीइश्यू? यहीं पे हो रहा है. नए बकरे को बीच में ही रोपिंग किया जा रहा है. इसको बोला जा रहा है तेरा कैपिटल 80 है, लेकिन तुझे भरना कितना है? 60. तो लॉस है कि गेन है? लॉस है. तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक शेयर forfeiture to what? इक्विटी शेयर कैपिटल. बराबर है. बैंक शेयर forfeiture to equity share capital. Are you getting the point? How much should I multiply my bank with? 500 into 60, that is 30,000. How much is my share forfeiture, my loss? 500 into 20, that is what? 10,000. And how much is my capital? 500 into 80, that is 40,000. Capital 80 से क्यों किया समझा? Why not capital with 100 and capital with 80? बीच में. forfeiture in between है और reissue भी in between ही है. Is it clear? forfeiture भी बीच में और reissue भी बीच में. मतलब जो नया बकरा आ रहा है उसको भी फाइनल कॉल भरना है, वो भी ज्वाइन हो गया. अब ट्रांसफर करना है. मुझे बताओ, have I reissued all the shares? 500 कैंसिल किया, 500 reissue किया.
तो कोई टेंशन नहीं, आई कैन कंपेयर 500 का प्रॉफिट माइनस 500 का लॉस, हाउ मच शुड आई ट्रांसफर? 10,000. Perfect. How come 10,000? 20,000 minus 10. This is 10,000. ये हमने क्या किया? अभी कौन से शेयर उड़ाए? इक्विटी. अभी सेम चीज है विद प्रेफरेंस. रीड, पढ़ो क्या दिया है स्टार्टिंग. इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों 100 रुपए के थे, दोनों 80 कॉल्ड अप थे. दिख रहे हैं? प्रेफरेंस का सीन देखो क्या हो रहा है. प्रेफरेंस भी 100 रुपए का था, 80 कॉल्ड अप. 80 कॉल्ड अप का हिंट है कि अभी भी फाइनल कॉल मंगवाना बाकी है. अब पढ़ो क्या दिया है. The directors forfeited 500 shares held by Ashish. उसके आगे दिया the directors also forfeited 500 preference shares of Ashok. अशोक के भी शेयर्स कैंसिल कर रहे हो. कहां कर रहे हो? एंड में कि 80 कॉल? बताओ, एंड में कर रहे हो कि 80 कॉल? 80 इधर ही काट रहे हो ना, तो इधर 80 कॉल काटने के पीछे कुछ तो कारण होगा. दुश्मनी थोड़ी है. क्यों काटा? क्योंकि उसने कुछ तो नहीं भरा है. आर यू लिसनिंग? ध्यान से देखना. What did he fail to pay? He failed to pay what? 20 per share on allotment, 20 per share on first call and 20 per share on second call. Allotment का 20 नहीं भरा, first call का 20 नहीं भरा, second call का 20 भी नहीं भरा. 20 on allotment, 20 on first call, 20 on second call. ये भरा कि नहीं भरा? नहीं भरा. इसके लिए उड़ा. ये नहीं भरा, ये नहीं भरा, ये नहीं भरा. तो भरा क्या? एप्लीकेशन भरा होगा 20 का. बराबर है. तो इसका मतलब ये वाला कॉल कौन सा हो गया? थर्ड कॉल हो गया. ये तो मंगवाना बाकी है. इज द पिक्चर क्लियर? ये बना लेना ब्रेकअप पहले. आउट ऑफ 100 20 तो साइड पे रखो, 80 कॉलम है. 80 के अंदर उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का 20 नहीं भरा. मतलब कह रहे हैं 60 नहीं भरा और 20 भरा. हेलो, इक्विटी और प्रेफरेंस में फर्क समझ आया? इक्विटी में क्या था? 40 भरा था, 40 नहीं भरा था. यहाँ पे 20 भरा है, 60 नहीं भरा, 60 नहीं भरा, इसके लिए उड़ा है. बराबर. फिर आगे रीइश्यू किया. व्हाट इज द रीइश्यू प्राइस? प्रेफरेंस आर रीइश्यूड एट 72 पर शेयर 80 कॉल्ड. तो 80 कॉल्ड मतलब यही स्टेज पे हो रहा है. कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई होगा? 80. बैंक 72. लॉस है कि प्रॉफिट? लॉस ऑफ 8. कर पाओगे? करो, लेकिन एक वर्ड का ख्याल रखना. इक्विटी की जगह क्या यूज करना है? फोर फीचर करो, रेशियो करो, ट्रांसफर करो. कम हाँ, 3 एंट्रीज. फोर फीचर, रेशियो, ट्रांसफर. 3 एंट्रीज. प्रेफरेंस. इक्विटी के जगह प्रेफरेंस. इक्विटी के जगह प्रेफरेंस. सेम 3 एंट्रीज. कम ऑन, डू इट. कम ऑन गाइस. चलो. रेफरेंस का 3 एंट्री करो. फोर फीचर, रेशियो एंड ट्रांसफर. ध्यान से करो. इसमें रेफरेंस में ना कितने शेयर्स हैं? 500 है ना. 500 इंटू 80. सब कुछ यही स्टेज पे हो रहा है. 80. कैपिटल 80 से ही होने वाला है. रेशियो भी 80 और फोर फीचर भी 80. दिस स्टेज इज योर हिंट. स्टेज है ना, स्टेज. स्टेज मतलब क्या?
80 कॉल्ड अप, 80 पेड, उसी से कैपिटल मल्टीप्लाई हमेशा। So capital will be 500 into 80, 40,000. Okay, stage indicates कितने से क्रेडिट हुआ है, कितने से डेबिट करना। करो। डन। प्रेफरेंस क्या करना है, तो वर्ड प्रेफरेंस लिखना है, इक्विटी नहीं लिखना है, ठीक है, वो ध्यान में रखना। हाँ आते हैं, बहुत रेयरली आते हैं, अभी कोटक क्या है पीछे होता है रेयर, रिटर्न दिखना नहीं है। अच्छा बॉन्ड्स में डाल दो, डिबेंचर्स में 11% मिल जाता है, 10-11 चलो guys, check. First entry is preference share capital account debit to call in arrear to share forfeiture. Okay? ध्यान से सुनो. Preference share capital debit will be how much? 500 into 80, 40,000. To call in arrear मतलब जो नहीं भरा, 500 into 60, that is 30,000. And जो भरा वो हड़प लिया, 500 into 20, 10,000. Got it? मिला? हेलो आया? Preference share capital debit 40,000 to call in arrear 30,000 to share forfeiture 10,000. फिर reissue वही 80 पेड अप 80 कॉल्ड अप, तो कैपिटल 80 से होगा, क्या भाव पे किया 72, तो एंट्री होगी बैंक शेयर फॉरफीचर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मिला? बैंक में आएगा 500 into 72, that is 36,000. फॉरफीचर में आएगा 500 into 8, that is 4,000. एंड कैपिटल आएगा 500 into 80, that is 40,000. कैपिटल 80 का 72 में दे रहा है न्यू बकरा। गॉट इट? इज इट क्लियर?
And then, did you reissue all the shares? Yes. You can easily transfer full money, credit minus debit. So 10,000 का profit minus 4,000 का loss is 6,000. Share forfeiture to capital reserve shall be 6,000. Did you get it? Share forfeiture to capital reserve 6,000. मिला? Understood? नहीं मिला? 72 प्राइस दिया तो है उधर, 80 का 72, समझा? अभी look at 39th. Pass journal entries for forfeiture and reissue of shares in each of the following alternative cases. 39 सब में एक्चुअली 3 सब पढ़ा हुआ है, A B C. 39 का A पार्ट पढ़ोगे. आशा लिमिटेड मिला? आशा लिमिटेड forfeited 100 equity shares of 20 each. What is the face value? 20 रुपए का फेस वैल्यू बेटा, कितना? 20. 100 नहीं है, 10 नहीं है, 20. 20 each, fully called up. What's the meaning of fully called up? हाँ? Last में. Okay? Fully called up मतलब you are doing whatever you are doing at the end you are doing. Okay? Fully called up. For non-payment of first call of 3 per share and final call of 5 per share. अब देखो, shut your mouth please both of you. 20 रुपीस का शेयर है, एंड में कैंसिल हो रहा है. कोई रीजन होगा ना कैंसिल करने का, शक्ल लेके थोड़ी कैंसिल करोगे. क्यों कैंसिल कर रहे हो? क्यों कैंसिल कर रहे हो? बिकॉज कुछ तो नहीं भरा है. तो क्या नहीं भरा है? फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर एंड सेकेंड कॉल ऑफ 5 पर शेयर. ये ना भरने की वजह से उड़ाए हो. तो कहना है से अगर उसने 3 और 5 नहीं भरा है तो 12 रुपया भरा होगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट का. तो कुछ भी होना तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अपने को क्या फर्क पड़ता है? अपने को क्या देखना है, क्या भरा क्या नहीं भरा. 12 भरा, 8 नहीं भरा, इसके लिए उड़ाया. कब उड़ाया? बीच में की एंड में? एंड में 20 रुपए पे उड़ाया उसको. 100 शेयर्स. 80 of these shares were reissued at 15 per share fully paid up. रीइश्यू भी किया, लेकिन कितना? फोरफीट कितना किया? 100. रीइश्यू कितना किया? फोरफीट कितना किया? 100. रीइश्यू कितना किया? 80. फोरफीट कितना किया? 100. रीइश्यू कितना किया? Did we reissue all the shares? No. It is called as part reissue. क्या बोलते हैं? आज बताया था ना part reissue. Part reissue में क्या होता है? Can you transfer full amount? Okay? तो उसका केयरफुल रहना है. साथ में करते जाओ. फर्स्ट एंट्री फॉर forfeiture. फर्स्ट एंट्री फॉर forfeiture. 3 ही एंट्री करनी है, forfeiture, reissue एंड ट्रांसफर की. ध्यान से देखो. forfeiture, reissue एंड ट्रांसफर, जस्ट 3 एंट्रीज. देखो, पहला तो कैपिटल डेबिट टू CIA टू शेयर forfeiture. बताओ, हाउ मेनी शेयर्स एम आई कैंसिलिंग? 100. Into what? When am I cancelling? What stage? At the end. At the end we are doing it. So how much? 100 into 20. Is this clear? 100 into 20 is 2000. Hello. Please don't talk. 100 into 20 2000 मिला. अब पढ़ो. इसमें कॉल इन एरियर कितना है? जो नहीं भरा वो कितना है? 8 नहीं भरा है ना, तो 100 into 8, 800 हो गया कॉल इन एरियर. तो भरा कितना? 1200. ये हड़प लिया, दिख रहा है इधर कैपिटल की तरफ 12 रुपया भरा था जो हमने हड़प लिया. 100 into 12 1200. कैपिटल कितना है? 100 into 20 फुल वैल्यू. कॉल इन एरियर मतलब जो नहीं भरा. क्या नहीं भरा? 8. और क्या भरा? 12. ये क्लियर है? अब रीइश्यू कर रहे हो, क्या दिया देखो. रीइश्यूड कितना शेयर्स? 80 शेयर्स. एट व्हाट प्राइस? 15 पर शेयर फुल्ली पेड अप. व्हाट इज फुल्ली पेड अप? व्हेन आर वी रीइश्यूइंग? एट द एंड. नया बकरे को बोल रहा है तू 15 दे लेकिन तेरा शेयर 20 का है. कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई होगा? 80 into 20. लेकिन पैसा कितना आया? 80 into
15, पैसा कितना आया 80 इंटू 15 तो कितना होता है 1200 और लॉस कितने का होगा 400। कैसा हुआ 400 का लॉस? इट इज 80 इंटू कितने का लॉस है 5 रुपीज। हाउ कम 5 का लॉस समझा? 20 का शेयर क्या भाव पे रीइश्यू किया है 15 तो 5 का लॉस। समझ में आ रहा है? अब आती है ट्रांसफर एंट्री। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, बोर्ड पे देखना। कैन आई ट्रांसफर सिंपली क्रेडिट माइनस डेबिट 1200 माइनस 400? कैन आई डू दैट? कैन आई कंपेयर 100 शेयर्स का प्रॉफिट विद 80 शेयर्स का लॉस? कैन आई कंपेयर 100 शेयर्स का प्रॉफिट विद 80 शेयर्स का लॉस? कर सकते हो? नहीं। तो ये 100 शेयर का प्रॉफिट है, इससे पहले क्या ढूंढ लेने का 80 शेयर्स का प्रॉफिट, क्योंकि 80 का प्रॉफिट माइनस 80 का लॉस आई कैन कंपेयर एंड ट्रांसफर। तो इक्वेशन अपना नोट बनाओ, इक्विटी शेयर और शेयर फॉर फीचर। 100 शेयर पे आपने कितना प्रॉफिट हड़पा है 1200 तो 80 का कितना कैसा आया समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 शेयर पे 1200 हड़पा है तो 80 शेयर्स पे कितना है 960। Should I transfer full 960? 960 minus this loss of 400. I transfer 960 minus 4. 960 minus 4. This was part reissue. This was पहले वाले सब में जो हमने किया था ना 40 शेयर्स रीइश्यू किए थे हमने। कितने किए थे 40। तो 40 का प्रॉफिट माइनस 40 का लॉस। तो यहाँ पे 80 का प्रॉफिट माइनस 80 का लॉस। What if I would have reissued all the shares? तो क्रेडिट माइनस डेबिट। समझा? हेलो, सारे के सारे रीइश्यू कर देता तो 1200 माइनस लॉस करके पूरा ट्रांसफर कर देता। समझा? हेलो, गया दिमाग में पार्ट रीइश्यू? स्टेज समझ में आ रहा है? स्टेज एंड में किया था, इसके लिए 20 रुपए। अब पढ़ो बी वाला, पढ़ो बी वाला। Bhakti Limited forfeited 100 equity shares of 10 each. 6 called up. 6 called up is your hint बेटा। 6 called up. 6 called up का मतलब कोई बताएगा? 6 रुपए में उड़ा रहे हो, 4 तो मंगवाना बाकी है। 6 called up, 6 paid up मतलब 6 की स्टेज में उड़ा रहे हो। अब 6 की स्टेज में क्यों उड़ा रहे हो? दुश्मनी है क्या? कुछ तो नहीं भरा होगा, तो पढ़ो। 6 called up on which the shareholder paid application and allotment of 5 rupees. 6 रुपए में बंदे ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भरा है कि नहीं भरा? तो क्या नहीं भरा? 1 रुपए। 1 रुपए का फर्स्ट कॉल नहीं भरा होगा। अब क्लियर हुआ? देखो 10 का शेयर था, 4 तो बाकी था मंगवाने का। 10 के शेयर में 4 तो बाकी था, तो 6 रुपया कॉल्ड अप है। 6 रुपया कॉल्ड अप में क्यों उड़ा दिया? क्योंकि 6 में 5 भरा है, 1 रुपया नहीं भरा। ये क्लियर हुआ पिक्चर? ये भरा है, ये नहीं भरा, इसके लिए उड़ा दिया। आउट ऑफ दीज 80 शेयर्स वर रीइश्यूड एज fully paid at 16 per share. 80 shares were reissued as fully paid at 16 per share. Fully paid मतलब when are we reissuing it? Reissue कब हो रहा है? At the end हो रहा है, मतलब कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 10। एंड 10 का शेयर क्या प्राइस पे जा रहा है? 60। मतलब 6 रुपए क्या प्रीमियम है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। पहला एंट्री फॉर फीचर, कितना शेयर्स कैंसिल कर रहे हो? हाउ मेनी शेयर्स एम आई कैंसिलिंग? बंद हो गए? बंद हो गए? ओके, ध्यान दो। अभी इधर देखो, कितने शेयर कैंसिल कर रहे हो बताओ? हाँ जी, 100 शेयर्स। बताइए, आर वी
4 फीटिंग एट द एंड और इन बिटवीन? इधर ही उड़ा रहे हो, इधर कितने से मल्टीप्लाई करो? 100 इंटू 6 600, कैपिटल 600. ओके, व्हाट इज कॉल इन अरियर जो नहीं भरा? व्हाट इज 4 फीचर जो भरा? क्या नहीं भरा? 1 रुपया. तो कॉल इन अरियर कितना होगा? 100 इंटू 1 100. 4 फीचर कितना होगा? 100 इंटू 5 500. हिंदी सिंपल. 100 500 600. Is that clear? बराबर है. अब सोचो 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 बेटा, सोचो. रेशियो हो रहे हैं, लेकिन 100 शेयर्स रेशियो रखे 80 शेयर्स 80 से करेंगे, लेकिन कब हो रहे हैं? आर वी रेशियो इन बिटवीन और एट द एंड? कर सकते हो ऐसा, बीच में कैंसिल करके लास्ट में रेशियो. स्टार्टिंग वाले फर्स्ट में देखा था, कैंसिल करके इमीडिएटली भी रेशियो कर सकते हो, एंड में भी रेशियो कर सकते हो. इधर यहाँ कर एंड में. तो बताओ कैपिटल पहले तो एंट्री क्या होगा? 10 का शेयर क्या प्राइस पे जा रहा है? 16. तो बैंक टू इक्विटी शेयर, कैपिटल टू व्हाट? शेयर प्रीमियम. बात समझ आई? कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई करूं बताओ? 80 इंटू 10. एंड में कर रहे हो तो 80 इंटू 10. बैंक में कितना आएगा? 80 इंटू 60 1280. और प्रीमियम कितना है? 80 इंटू 6 480. हेलो. अब ट्रांसफर शेयर 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व. थिंक कैन आई डू डायरेक्टली 500 minus 05? Why? Can I compare 100 शेयर का प्रॉफिट with 80 शेयर का लॉस? No. So what should I do? इक्वेशन बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इक्विटी शेयर और शेयर 4 फीचर. देखो 100 शेयर पे हमने कितना हड़पा है? 500. तो 80 शेयर्स पे कितना हुआ? 400 मिला. 400 माइनस लॉस है कुछ नहीं, तो कितना ट्रांसफर करेंगे? 400. पार्ट रेशियो जा रहा है भेजे में. 80 शेयर का ही रेशियो हुआ है. इधर प्रॉफिट कितने शेयर्स का है? 100 पे हड़पा 500. तो 80 पे कितना हड़पा होगा? 400. 400 माइनस लॉस है ही. देयर इज नो लॉस. व्हाई देयर इज नो लॉस? Why there is no loss on ratio? Premium. You have ratio it at premium. Got it? Yes, sir. Try the third one. Third one I'm discussing. Read. Konark Limited forfeited 50 shares of 10 each. 8 called up. Come on, tell me. 8 called up is your hint. What's the hint? 2 रुपया अभी भी मिलना बाकी. बीच में ही उड़ाया. अभी 8 रुपये में क्यों उड़ाया? कुछ तो नहीं भरा होगा. क्या नहीं भरा? पेड टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर. बंदे ने फर्स्ट कॉल 3 रुपए का, तो भरा क्या? 5 भरा होगा. यस और नो? 5 भरा होगा. हेलो, सुना? 8 में 3 नहीं भरा है, तो 5 भरा है. 5 और 3 8. 2 तो बाकी है. बट नाउ बैठो, इधर देखो. 3 रुपीज नहीं भरा है, 5 रुपीज भरा है. और अभी गॉट दैट. इधर उड़ा है 8 कॉर्डर पे उड़ा है. लेटर ऑन 30 शेयर्स वर इशूड. कैंसिल कितना किया है? 50. इशू कितना किया? 30 एट 7 पर शेयर. एट, लेकिन कब किया कुछ पता है? कुछ नहीं दिया तो उधर ही, जिधर फोरफीट हुआ उधर ही रीइश्यू. मतलब 7 पर शेयर 8 कॉल्ड. 7 पर शेयर 8 का शेयर क्या भाव पे जा रहा है? 7. तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? ट्राई करो. 4 फीचर रेशियो ट्रांसफर ट्राई करो. अशुभ रेशियो डायरेक्ट. कुछ नहीं दिया तो उधर, कुछ नहीं दिया तो उधर का उधर. Come on guys.
नहीं हो पाएगा बेटा, ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा इससे। अरे इसमें मेरे को क्या होगी? पढ़ाई तो नहीं हो रही है, ट्रेडिंग भी नहीं हो पाएगी, तो करियर के बारे में सोच रहे। ओके भाई साहब, come on. पटेल, दिमाग लगाओ, चलो। Want to go out now, Pratham and Devansh. देवांश, प्रथम, निकलो बाहर, निकलो बाहर, जाके जो करने का निपटाओ। हाँ क्या 7 पर शेयर 8 क्वार्टर, यही स्टेट फ्लोर। 4 फीचर भी इधर, रेशियो भी इधर, तो 8 का 7 में 1 रुपया लॉस है। करते जाओ, बताऊंगा। Reissue is also at 8 quarter. कुछ नहीं दिया तो 8 quarter, नहीं 8 का 7 में ना, तो लॉस। 8 क्वार्टर, रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया तो 8 क्वार्टर, सेम स्टेज, जिधर प्रॉफिट किया उधर ही रेशियो, नथिंग इज गिवन देयर। तो 8 का 7 में अरे लास्ट सॉन्ग आंसर रॉन्ग है, सारे थोड़ी रेशियो है। पचास कैंसिल किया है लेकिन 30 रेशियो किया है। क्या 50 कैंसिल किया है, 30 ही रेशियो किया, 30 का ट्रांसफर होगा। हो गया, करो डिस्कस। रुको 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 ना, चलो देखो, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट चेक। गाइस प्लीज बी क्वाइट।
Listen now. Equity share capital account debit will be 50 into 8. 8 called up पे हो रहा है सब काम मिला 50 into 8 equity share capital account debit that is 400 50 into 8 400 मिला hello now guys हुआ तीनों हुआ equity share capital account debit 400 to call in arrear to share 4 बराबर है कॉलिंग एरियर कितना आएगा 50 into 3 150 एंड जो भरा वो हड़प लिया 50 into 5 250 गॉट इट अब रीइश्यू किया है 7 रुपए में तो बैंक शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना शेयर है 30 है तो बैंक में आएगा 30 into 7 210 आपका 4 फीचर आएगा 30 into 1 30 कैपिटल 30 into 8 240 मिला now comes the transfer can I do directly credit minus debit no because कैंसिल किया है 50 और इशू किया है 30 तो आई कांट कंपेयर 50 शेयर्स का प्रॉफिट विद 30 का लॉस सो व्हाट इज 50 शेयर का प्रॉफिट 250 तो उधर से 30 शेयर का ढूंढो 50 का 250 है तो 30 का कितना है 150 माइनस द लॉस ऑफ 30 so 150 minus 30 120 the transfer amount is 120 did you get it share forfeiture to capital reserve is 120 did you get that any doubts 120 आया पक्का पक्का समझा look at 25 सुमन लिमिटेड एक मिनट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है इक्विटी शेयर और शेयर फोर ऊपर 50 शेयर्स का फोर फीचर अमाउंट इज 250 फोर फीचर एंट्री फोर फीचर में कितने से क्रेडिट हुआ है प्रॉफिट 250 50 शेयर्स का 250 है फोर फीचर अमाउंट देखना है 50 शेयर्स का 250 है 30 का कितना 150 माइनस लॉस गॉट इट हाँ 50 का 250 है 50 का 250 है तो 30 का कितना 150 आया कि नहीं Share for feature to capital reserve you are telling. What are you asking? Share for feature to capital reserve पूछ रही हो. What are you asking, Sanvi? एक मिनट. First four feature entry आया. उसमें 250 का प्रॉफिट है. रेशियो आया. बैंक शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल 30 शेयर्स का रेशियो है 30 into 7 30 into 1 and 30 into 8 30 into 7 30 into 1 30 into 8 30 into 7 is 210 30 into 1 is 30 and to capital is 30 into 8 240 वो आया 30 शेयर्स रेशियो किया है 7 रुपीस पे 8 रुपीस के स्टेज पे तो कैपिटल 30 into 8 240 प्राइस इज 7 तो बैंक में आएगा 30 into 7 210 एंड लॉस इज 30 into 1 क्या नहीं समझ रहे इतना क्यों अटक गया तुम लोग यू कैंसल्ड 50 शेयर्स हेलो वो हो गया फिर रेशियो किया कितना 30 shares. At what price? 7. At which stage? Stage. कुछ नहीं दिया. So capital will be multiplied by 8 rupees. So 30 into 8 240. Bank में 7. 30 into 7 210. Loss is 30 into 130. 718. हुआ. अभी ट्रांसफर एंट्री. I can't transfer full credit minus debit because cancel 50 किया और रेशियो 30 किया ना तो 50 का प्रॉफिट इज 250 तो 30 का कितना 150 150 माइनस द लॉस 30 कितना
मिला 120 मिला ट्रांसफर अभी क्लियर चलो 25th सर सुमन लिमिटेड इश्यूज equity shares at 10 per share at a premium of 3 rupees. So 10 का शेयर कितने में जा रहा है 13 में जा रहा है मिला 10 का शेयर 13 में जा रहा है मिला हेलो नाउ व्हाट इज द सब डिविजन क्या दिया है उधर 3 on application then what 5 on allotment including premium. So this is 2 plus 3, 2.5 on first call and 2.5 on second call. बराबर? पढ़ो अभी आगे क्या हो रहा है पढ़ो. One shareholder Mr. Ashok failed to pay allotment money and first call money on 200 shares and directors forfeited his shares after first call. When are we cancelling? After first call. This stage. So your capital will be multiplied by what? 3 plus 2 plus 2.5 7.5 प्रीमियम नहीं लेने का समझा पहले वाले का किधर कैंसिल किया है आफ्टर फर्स्ट कॉल इधर कैंसिल किया है क्यों कैंसिल किया आफ्टर फर्स्ट कॉल क्या नहीं भरा उसने he did not pay allotment he did not pay first call so what did he pay application उड़ा दिया उसको दूसरा पढ़ो while another shareholder Mr. Atul failed to pay first call and final call money on 100 shares and his shares were forfeited after final call तो अतुल का किधर उड़ा रहा है लास्ट में क्यों उड़ा रहा है लास्ट में क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं भरा मतलब उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भरा है बराबर है दोनों शेयर होल्डर है एक ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं भरा इसके लिए इधर उड़ाया दूसरे ने फर्स्ट और सेकेंड कॉल नहीं भरा इसके लिए लास्ट में उड़ाया आपको क्या करना है खाली 4 फीचर एंट्री नो रेशियो नो ट्रांसफर जस्ट 2 4 फीचर एंट्री कम ऑन ट्रैक 1 4 फीचर एंट्री फॉर मिस्टर क्या नाम है अशोक एंड 1 4 फीचर एंट्री फॉर मिस्टर अतुल करो 2 ही एंट्री है ध्यान से करो ओनली 4 फीचर इसमें प्रीमियम है प्रीमियम का रूल याद है वंस रिसीव should not be debited not receive should be debited करो make 2 entries quick
एक और अच्छा चलो देखो दो एंट्रीज ही था। मुझे बताओ पहले मिस्टर अशोक कहाँ उड़ा रहे हो अशोक को? आफ्टर फर्स्ट। सो हाउ मच शुड आई मल्टीप्लाई माय कैपिटल विथ? 7.5 कि 10.5? 1500. Don't take premium. मिला? Stage at this stage. Premium once received should not be debited. Not received should be debited. Did Ashok pay premium? जिनीशा बेटा क्लास में रहो, मेंटली भी क्लास में रहो। Did he pay the premium? No, he did not pay the premium. So should we debit it? Yes. Fake premium है, डेबिट करना पड़ेगा। 200 into 3, 600. Call in arrear क्या नहीं भरा? Call in arrear क्या नहीं भरा? ये नहीं भरा। Call in arrear इस कचरा पेटी, कुछ देखने का नहीं, कैपिटल में जो नहीं भरा सब call in arrear। तो 5 into 2.5 कितना होता है? 7.5। तो 200 into 7.5 कितना हुआ? 15। और इधर क्या आएगा? शेयर कोड भी 600। व्हाट इज दिस 600? 200 into 3। इसमें सिर्फ एप्लीकेशन भरा जो हमने हड़प लिया, सिर्फ एप्लीकेशन भरा जो हमने हड़प लिया। आपके होमवर्क में भी सेम था। इज इट क्लियर? आया? अभी अतुल भाई का देखते हैं। अतुल का कितना शेयर्स था? 100 शेयर्स था। When are we cancelling those 100 shares? At the end. So what should I multiply my capital by? 100 into 10. 1000. Premium का rule once received should not be debited. Not received. Did Atul pay the premium? Yes. Atul paid application. Atul paid allotment. He paid premium. तो डेबिट करने की जरूरत नहीं है। कॉल इन अरियर अतुल ने क्या नहीं भरा? फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, मतलब 5 रुपीज नहीं भरा। तो 100 into 5 कितना होता है? 500। एंड क्या भरा वो हमने हड़प लिया 100 into 5। लेकिन उसने तो 8 रुपया भरा है, इधर तो 5 ही है। 3 रुपया प्रीमियम में पड़ा। 3 रुपया किधर पड़ा है? प्रीमियम। 4 फीचर में कौन सा अड़पा हुआ पैसा रहता है? मनी रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल। मनी रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल। प्रीमियम भी अड़पा है बट इट इज इन प्रीमियम अकाउंट। ओके, गॉट इट? मिला? 100 into 5 5। लास्ट सम 33, 33rd sum। देखो सम नंबर 33 में ध्यान से पढ़ो। धनंजय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी forfeited 500 equity shares of 10 each on which 6 per share were received। धनंजय इलेक्ट्रॉनिक ने कितना शेयर्स कैंसिल किया है? 500 शेयर्स on which 6 per share were received। मतलब हड़पा कितना? 6। तो 500 into 6, can I say 3000 is share forfeiture? ये हड़पा हुआ है। ये ऊपर करके लिखो शेयर forfeiture is 3000, क्योंकि अपने को forfeiture एंट्री नहीं करनी है, वो हो गया है। आपको क्या करना है? आगे बढ़ो। शो जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग रीइश्यू इफ नंबर 1 शेयर्स आर रीइश्यूड एज 8 per share fully paid up। fully paid up मतलब एंड में, मतलब 10 का 8 में। fully paid up मतलब 10 का 8 में, तो 2 का लॉस। शेयर्स आर इशूड एट 7 8 कॉल्ड, मतलब 8 का 7 में, 1 का लॉस। और शेयर्स आर इशूड एट 5.5 7 कॉल्ड, मतलब 7 का 5.5 में 1.5 का लॉस।
समझा? तो लेकिन रीइश्यू के साथ एक और एंट्री चिपक जाता है। ट्रांसफर के लिए प्रॉफिट कितना है? 3000 माइनस लॉस माइनस लॉस माइनस लॉस। गॉट इट? सो रीइश्यू ट्रांसफर, रीइश्यू ट्रांसफर, रीइश्यू ट्रांसफर, 6 एंट्रीज, कम ऑन ट्रैक। 4 फीचर नहीं करना है, 4 फीचर हो चुका है। अच्छा, 4 फीचर कब हुआ है वो मालूम नहीं है, 6 रुपए 8 में वो मालूम है, 7 रुपए में 4 फीट किया कि 8 में किया कि 9 में किया कि 10 में किया, वी डोंट नो, लीव इट। 4 फीचर में हड़पा हुआ पैसा 3 है, ये पता है। अब रीइश्यू ट्रांसफर, रीइश्यू ट्रांसफर, रीइश्यू ट्रांसफर, ट्राई करो भाई, देखो रीइश्यू ट्रांसफर, रीइश्यू ट्रांसफर, रीइश्यू ट्रांसफर, 6 एंट्रीज, ट्राई। Only reissue transfer, reissue transfer, reissue transfer. कॉलेज आज का पेपर अभी तो कल सबका लिस्ट आया, आधार कार्ड बेचारे लोग कॉलेज गए, कॉलेज में लाइट ही वो गई थी आधार अपडेशन कॉलेज लिस्ट आया जिनका वो बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाना है, जिसमें रिक्वायर्ड उनको डालना है। जब गए थे कल लाइट ही बोलते हैं पोस्ट ऑफिस में करना, बहुत टाइम लेता है बैंक में करने का, बैंक में जाने का रीइश्यू ट्रांसफर, रीइश्यू ट्रांसफर, 6 एंट्रीज। फर्स्ट रीइश्यू 10 का 8 में, 2 का लॉस, फिर 8 का 7 में, 1 का लॉस। अगर एक बार ही माइनस किया इसमें से सेल फोर फीचर में से 2000 माइनस किया, उसके बाद आप मतलब अलग अलग है, तीनों केस अलग अलग है। तीनों केस के लिए प्रॉफिट इतना ही है, 3000 माइनस लॉस, दैट इज व्हाट यू विल ट्रांसफर। ऑल द शेयर्स आर रीइश्यूड, तो टेंशन नहीं है, सब शेयर्स रीइश्यू किया। परफेक्ट। जैसे खत्म हो गया ना? करें डिस्कस, हो गया। चेक। पहला केस 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई होगा? 10 और बैंक में कितना आएगा? 8। सो देखते जाओ, पहला एंट्री है बैंक शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल मिला
Yes, sir. 500 into 8, 4,000. 500 into 2, 1,000. And 500 into 10, 5,000. Got it? मिला? अब ट्रांसफर, कैन आई ट्रांसफर पूरा प्रॉफिट माइनस पूरा लॉस? यस, बिकॉज सारे शेयर्स रेशियो हो गए हैं, बराबर है? 3,000 का प्रॉफिट है माइनस 1,000 का लॉस, सो 2,000 मिला. शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 2,000, पहला वाला मिला. हेलो, दूसरा वाला 8 कॉलम 7 में किया है, तो बैंक शेयर फॉर फ्यूचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ओके, कैपिटल में कितना? 8 रुपीज, 4,000. 8 into 500, 4,000. बैंक में कितना? 500 into 7, 3,500. एंड शेयर फॉर फ्यूचर में 500 into 1, 500. 500 का लॉस हुआ है, मिला. अब ट्रांसफर एंट्री, 3,000 का प्रॉफिट माइनस 500 का लॉस, 2,500. तो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व कितना होने वाला है? 2,500, 2,500. यू गॉट दैट? हेलो. तीसरा, बैंक शेयर फॉर फ्यूचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक में कितना? 5.5 into 500, दैट इज 2,750. शेयर फॉर फ्यूचर 1.5 into 500, 750. टू इक्विटी शेयर कैपिटल 500 into 7, 3,500. मिला. एंड देन ट्रांसफर शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 3,000 माइनस 750, 2,250. शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 2,250. सारे के सारे शेयर्स रेशियो हो गए, तो क्रेडिट माइनस डेबिट मिला. होमवर्क से 4 लोग को फाइन भरना है. खुश, जश.